یسوع مسیح کے عظیم اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ ہم خدا کے شکر گزار ہیں آج ایک نئے لیکچر کے ساتھ، اور اعمال کی کتاب میں سے آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اعمال کی کتاب کا 3 باب اور اس کی آیت نمبر 16 سے، اسی کے نام نے اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے اس شخص کو مضبوط کیا جسے تم دیکھتے اور جانتے ہو۔ بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلہ سے ہے یہ کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی۔ اور اب اے بھائیو، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے کیا، اور ایسا ہی تمہارے سرداروں نے بھی، مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا، اور اس نے اسی طرح پوری کی۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، اور اس طرح خدا کے حضور سے تازگی کے دن آئیں۔ خدا کے مقدس کلام میں سے جو ہم سیکھتے ہیں، یہاں پر لکھا کہ رسول جب منادی کر رہے تھے اور انہوں نے ان کو بتایا کہ آپ نے زندگی کے مالک کو قتل کیا ہے، آپ نے اسے قبول نہیں کیا، اور اس طرح سے جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اور اس کے نام سے معجزات ہو رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ جو معجزہ ہوا ہے یہ ہم نے نہیں کیا، یا ہماری کوئی قدرت نہیں ہے، بلکہ اسی کے نام سے، یعنی یسوع کے نام سے، اس ایمان کے وسیلہ سے جو اس کے نام پر ہے۔ تو بہت سارے دنیا میں ایمان ہو سکتے ہیں، لیکن وہ ایمان جو یسوع نام پر ہے اس کے وسیلہ سے رہائی ملتی ہے۔ تو بتاتے ہیں کہ یہ شخص جو مفلوج تھا پیدائشی طور پر، اور یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا، تو یہ ہمارا نہیں بلکہ یسوع نام کا کمال ہے۔ اور پھر ان کو بتاتے ہیں کہ بے شک اسی ایمان نے جو اس کے وسیلہ سے ہے کامل تندرستی تم سب کے سامنے اسے دی۔ اور اب اے بھائیو، میں جانتا ہوں کہ تم نے یہ کام نادانی سے کیا۔ تو جب انہوں نے معجزہ کیا، معجزے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو خداوند کی طرف ڈائیورٹ کرنا، خداوند کی طرف پھیرنا۔ تو معجزات پرسنلی جو ہے فیم کے لیے نہیں ہے بلکہ خداوند کے جلال کے لیے ہیں، اور رسولوں نے کیا۔ پھر وہ ان کو بتاتے ہیں کہ آپ غلطی پر تھے، اور آپ کے بزرگوں نے یسوع کو غلطی سے مصلوب کیا، اسے جان نہیں سکے، مگر جن باتوں کی خدا نے سب نبیوں کی زبانی پیشتر خبر دی تھی کہ اس کا مسیح دکھ اٹھائے گا۔ تو یسوع مسیح کے بارے میں پیدائش کی کتاب سے ہم جب شروع کرتے ہیں تو مکاشفہ تک مسیح کے بارے میں پیش گوئیاں ہمیں ملتی ہیں، اور اس نے اسی طرح پوری کی۔ پس توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں۔ تو یسوع پر ایمان لانے کے وسیلہ سے گناہوں کی معافی ملتی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جب کوئی سچی توبہ کرتا ہے تو پھر اس کے لیے تازگی کے دن آتے ہیں، اور وہ اس مسیح کو جو تمہارے واسطے مقرر ہوا ہے، یعنی یسوع کو بھیجے۔ تو مسیح جو ہے یہ کسی کا نام نہیں ہے، مسیح جو ہے ٹائٹل ہے، مطلب یہ ہے رہائی دینے والا، اور یسوع ہی مسیح ہے، چونکہ یسوع کے نام میں گناہوں کی بھی معافی ہے۔ دنیا کے اندر بڑے مسیح ہونے کے دعوے دار ہو سکتے ہیں، لیکن گناہ کی معافی کوئی نہیں دے سکتا، اور وہ صرف یسوع ہی ہے، اور یسوع مسیح ہے جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس لیے اس کا کوئی ثانی یا اس کا مد مقابل کوئی نہیں ہے۔ ضرور ہے کہ وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائیں۔ تو یسوع مسیح اس دنیا میں پھر آنے والا ہے، لیکن خداوند چاہتا ہے کہ اس کی جو خوشخبری ہے، اس کا کلام جو ہے دنیا کی انتہا تک پہنچے، اور پھر خداوند کا جو ہے وہ آنا ہو، اور دنیا کے اوپر ایماندار بھرپور ڈے نائٹ جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو گناہ کی زندگی سے نکال لیں۔ جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبانی کیا جو دنیا کے شروع میں سے ہوتے آئے ہیں، چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی برپا کرے گا، نبی پیدا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا۔ اور یہ ہوگا کہ جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا
वो उम्मत में से नेस्त व नाबूद कर दिया जाएगा। अब कई बार हमारे जो अहले इस्लाम दोस्त हैं वो ज़बरदस्ती मसीहियों को पकड़ पकड़ के ये मनवाने की कोशिश करना चाहते हैं कि देखें यहाँ पर वो नबी के बारे में जो बात की गई है, ये नबी इस्लाम के बारे में बातचीत की गई है। आइए बाइबल मुकद्दस में इस्तिस्ना की किताब में देखते हैं कि वो नबी जो है वो कौन है, किसके बारे में जो है खुदा का बंदा जो है वो कहता है। सो वो नबी के बारे में इस्तिस्ना की किताब और उसका 18वां बाब और इसकी आयत नंबर जो है वो 14 में लिखा है, क्योंकि वो कौम है जिनका तू वारिस होगा, शगुन निकालने वालों और फालगिरों की सुनती है, पर तुझको खुदा तेरे खुदा ने ऐसा करने ना दिया। खुदावन तेरा खुदा तेरे लिए तेरे ही दरमियान से यानी तेरे ही भाइयों में से मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा, तुम उसके सुनना। तो यहाँ पर जो है बुजुर्ग मूसा के दौर में, उस दौर के बनी इसराइल ने भी रिक्वेस्ट की थी कि तू ही खुदा से बात कर लिया कर, और याद रखे कोई भी इस दुनिया में रहने वाला नहीं है। फिर वो बुजुर्ग मूसा ये दरखास्त करता है कि खुदावन इनके लिए एक ऐसा रहनुमा हो जो इन्हें गुनाह से रिहाई दे, मखलसी दे। सो खुदा ने अपने बंदा को यकीन दहानी कराई कि तेरे ही दरमियान से, अब तेरे ही दरमियान से मुराद बने इसराइल में से। तो जहां तक देखा जाएगा, कंपैरिजन किया जाए तो बुजुर्ग मूसा जो है वो बनी इसराइल में से है और यीशु मसीह जो है वो बनी इसराइल में से है, तेरे ही भाइयों में से। ठीक है, तो यहां पर ये एक और बात हो गई, तेरे ही भाइयों में से, जबकि अहले इस्लाम के यहाँ जो तालीम है कि यहूद व नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, तो फिर भाई कहां से हो सकते हैं। सो बुजुर्ग मूसा की जो सिमिलैरिटी है वो यीशु मसीह के साथ मिलती है। और फिर क्या, मेरी मानद एक नबी बर्पा करेगा। मेरी मानद से मुराद अब यीशु मसीह की और बुजुर्ग मूसा की सिमिलैरिटी कितनी मिलती है, जब बुजुर्ग मूसा जब वो पैदा हुए और उस वक्त भी बच्चों का कत्लेआम हुआ, यीशु मसीह जब पैदा हुए उस वक्त भी बच्चों का कत्लेआम हुआ। और बुजुर्ग मूसा के बारे इमाल की किताब के 7वें बाब में लिखा है, उन्होंने मिस्र के तमाम अलूम की तालीम पाई। और यीशु मसीह के बारे में भी लिखा लूका की इंजील के 4 बाब में, उनको जो है तुमार दिया गया और उन्होंने यसाया के सहीफा में से वो मुकाम निकाला जहां पर लिखा था कि खुदाबंद का रूह मुझ पर है और उसने मुझे भेजा है कि कैदियों को रिहाई दो। सो यहाँ पर सारी एक स्टेटमेंट है, जिस तरह से बुजुर्ग मूसा बनी इसराइल को मिस्र की गुलामी से निकालने का सबब बना, इसी तरह से यीशु मसीह बनी नौ इंसान को गुनाह की गुलामी से निकालने का सबब बना। और बुजुर्ग मूसा जो है वो पढ़ा लिखा था, यीशु मसीह जो है वो भी पढ़ा लिखा था। और इसी तरह से यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये तेरी उस दरखास्त के मुताबिक होगा जो तूने खुदांद अपने खुदा से मजमा का दिन हुरब में की थी, कि मुझको ना तो खुदांद अपने खुदा की आवाज फिर सुननी पड़े और न ऐसी बड़ी आग का ही नजारा हो ताकि मैं मर ना जाऊं। यूहन्ना के इंजील के 1 बाब में लिखकर कलमा मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। हुरब के मुकाम के ऊपर कोई उसके जलाल को देखकर जिंदा नहीं रह सकता, वो ताब नहीं ला सकते थे, लेकिन यीशु मसीह के लिए एक जिस्म तैयार किया गया, खुदा का कलमा मुजस्सम हुआ ताकि इंसानों के बीच में रहे। सो इस तरह से ये जो पूरी सिमिलैरिटी जो है बुजुर्ग मूसा और यीशु मसीह की बनती है। सो वो नबी के बारे में जो है कई बार लोग और तरफ लेके जाते हैं। यूहन्ना की इंजील के बारे में यीशु मसीह खुद जो है वो इसकी वजाहत फरमाते हैं। और यूहन्ना की जो है इंजील और उसमें हम देखते हैं, इमाल की किताब जहां से हम पढ़ रहे थे, 5वां बाब और उसकी 46वीं आयत। यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी आयत नंबर 46 में लिखा है, क्योंकि अगर तुम मूसा का यकीन करते, तो यहां पर यह बात यीशु मसीह बताता है कि मूसा ने कोई बात कही है आने वाले के बारे में, तो मेरा भी यकीन करते इसलिए कि उसने मेरे हक में लिखा है। तो वो नबी ये वो है जिसके बारे में लिखा गया है। लेकिन जब तुम उसके नविश्तों का यकीन नहीं करते तो मेरी बातों का क्यों कर यकीन करोगे। आइए फिर इमाल की किताब में हम आते हैं। तो यहां पर लिखा वो मुझसा एक नबी पैदा होगा, जो कुछ वो तुमसे कहे उसके सुनना
और यूं होगा कि जो शख्स उस नबी की ना सुनेगा वो उम्मत में से नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा, यानी हमेशा की जिंदगी से वो काट दिया जाएगा। बल्कि सैमुअल से लेकर पिछलों तक जितने नबियों ने कलाम किया उन सब ने इन दिनों की खबर दी, यानी आने वाले मसीह के बारे में खबर दी। पैदाइश की किताब में लिखा कि जो औरत की नस्ल से पैदा होगा वो इब्लीस के सर को कुचलेगा। यसाया नबी ने यीशु की पैदाइश से लेकर उसके मुर्दों में से जी उठने, बल्कि जो अब्दी बादशाही है उसके बारे में भी खबर दी है। यीशु की मसलूबियत का जिक्र किया है। मीका नबी ने जिक्र किया यीशु मसीह का, तो वो नबी से मुराद ये है जिसकी नबियों ने पेशीन गोइयां की हैं। लेकिन अगर किसी की बाइबल मुकद्दस के अंदर पेशगोई ही नहीं है तो क्यों कर उस पर कोई ईमान लाएगा, या क्या कोई ज़बरदस्ती जो है वो प्रेशर देकर ईमान जो है वो दिला सकता है कि ये इस बात पर ईमान लाओ। तुम नबियों की औलाद और उस अहद के शरीक हो जो खुदा ने तुम्हारे बाप दादा से बांधा, जब अब्राहम से कहा कि तेरी औलाद से दुनिया के सब घराने बरकत पाएंगे। अब्राहम के साथ जो वादा किया गया था उसके बाद उसकी नस्ल में से जो है वो इसहाक के साथ जो है वो वादा किया गया था। खुदा ने अपने खादम को उठाकर पहले तुम्हारे पास भेजा ताकि तुम में से हर एक को उसकी बदियों से हटाकर बरकत दे। तो बाइबल मुकद्दस बताती है वो नबी से मुराद वो नबी वो होगा जो गुनाह भी मुआफ कर सकता है, बदियों से हटा सकता है, और ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह है। खुदा आप सबको बरकत दे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। इस वीडियो को दूसरों के साथ भी शेयर करें और अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए इसे अपने जहन नशीन करें ताकि आप बरकत पाएं।